Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will solve exercise 8A question number 1. It is our first chapter of second term syllabus. So student, in last class uh, we studied about the explanation of percentage. Now we will start exercise 8A. And question number 1. I am reading question number 1. Express each of the following percentages as a fraction. Question number 1, you have a question is given in percentage form and you will convert this percentage in fraction form. क्वेश्चन 1 पार्ट ए आपको जो गिवन है वो आपको परसेंटेज में गिवन है और आपने उसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में. यू कैन सी द हियर 28. ओके, when we remove the percentage sign, that's mean it means anything which is divided by 100. It means divided by 100. परसेंटेज का सिंबल हटेगा तो इसका मतलब है हम परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर रहे हैं. ओके, 28 अपॉन 100. अब ये जो है कैंसिलेशन प्रोसेस हम इसको कर सकते हैं. वी कैन कैंसिल आउट फ्रॉम द टेबल ऑफ टू के टेबल से हम सॉल्व कर सकते हैं. क्यों? वाई वी canceling the number with the two table. Number 2, because in the last you can see the last digit of 28 is 8 and last digit of 100 is 0. Both numbers are even number, so even number always be comes in the table of 2, like 2 ones are 2, 2 fours are 8, 2 fives are 10, and 0 we will write as it is. So here we will write again 14 upon 50. 14 upon 50 all further cancel, can also be cancel simplify with the help of table 2, like 2 sevens are 14. Dear student, 5 is not the multiple of 2, but less than 5 in table 2 is 4, which is 2 twos are 4. 5 minus 4, 1. We will give carry 1 to the 0. It becomes 10. 2 fives are 10. So now students, you can see that the fraction form of the 28% is 7 upon 25. This is the answer of part A. We cannot solve it because 7 and 25 are not the multiple of a same number. 7 is a prime number and 25 is not the multiple of table 7. That is the answer of this is the fraction form. ये आपके फ्रैक्शन फॉर्म है. फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन्वॉल्व होते हैं. Now part B we have given exercise 8A part B. It is on page number 192. 158%. 158%. So student, how to solve? As usual, 158 and in denominator you will write 100. 100. You can see that last digit is even in both numbers, and numerator and denominator last digit is even. So we can simplify it. 15 is not the multiple of table 2. 14 is the multiple of 2. It comes 2 sevens are 14. 2 sevens are 14. 15 minus 14 मतलब देखें इसको हम कैंसिल ऐसे करते हैं. 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में क्या आता है स्टूडेंट? 14 तो आता है ना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 से छोटा लिखेंगे 14 और वो अपने माइंड में रखिएगा. और वो कौन से नंबर से आता है? 7 से. 14 माइनस 15 कितने होते हैं? 8 1 यहाँ पे कैरी दे दी, ये बन गया 18. 2 9s are 18. Now 2 5s are 10. 0 as it is. Dear student, 79 upon 15. These number, the numerator is not the multiple of 5, 2, 4 or any number. तो ये एक टेबल में दोनों नहीं आते हैं. ये दोनों हम इसका आंसर यहाँ पर यही इसका आंसर है 79/50, क्योंकि दोनों का एक टेबल से कैंसिल होना लाजमी है. ओके,
Part C you have given. Part C you have given 12.4%. Part C consists of decimal form of percentage number. ये decimal form आपको given है and you will convert this decimal form into fraction form. अब आप पहले डेसिमल से फ्रैक्शन में जाएंगे. हाउ टू सॉल्व देखें क्लास. पहले मैं 12.4 का जो हमारे पास ये जो पॉइंट है मैं इसको रिमूव करूंगी. अभी हम परसेंटेज को सॉल्व नहीं करेंगे. फर्स्ट वी विल रिमूव द पॉइंट फ्रॉम हेयर. पॉइंट हटता है क्लास. आई एम रिमूविंग पॉइंट. पॉइंट को जब हम हटाते हैं व्हेन वी रिमूव द पॉइंट फ्रॉम हेयर, इसके अपॉन में 1 आ जाएगा. ठीक है, ये रूल होता है. पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर यू वी हैव, हाउ मेनी डिजिट वी हैव गिवन, वी हैव ओनली 1 डिजिट गिवन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0. मैं दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स. whenever we have question given in decimal form, first we will convert this decimal form into fractional form. For fraction form we remove the point from the numerator and in denominator we will write 1. पॉइंट हटता है 1 आता है. पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं हम उतने 0 लिख देते हैं नीचे. यानी कि अब ये बन गया 124/10. अब क्लास हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. परसेंटेज का मतलब आप जानते हैं डिवाइडेड बाय 100. नीचे 10 है तो 110 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे 10 भी तो है ना और 100 भी है. अब हम क्या करेंगे क्लास, हम कैंसिल आउट करेंगे. देखते हैं 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, 0 we will write as it is. अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 62/10 50 500. अब ये अभी फर्दर सॉल्व हो सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 जो है इवन है और नीचे 0 है. ओके, 2 3 6, 2 1 2. यहाँ पे 2 2 4. दोनों नंबर्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम नंबर से कैंसिल होना जरूरी है. 2 5 10, 0. स्टूडेंट 31/250 इज द आंसर, क्योंकि ये दोनों एक टेबल से सॉल्व नहीं हो सकते. 31 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल में आता है, ये 1 के टेबल में. ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता. दैट इज द आंसर ऑफ पार्ट सी. पार्ट डी वी हैव गिवन अ मिक्स फॉर्म ऑफ अ नंबर. पार्ट डी आप देखिए क्लास, आपके पास क्या गिवन है, मिक्स फॉर्म गिवन है जो कि हमारे पास है 6 3/5%. ये देखिए स्टूडेंट 6 3/5%. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पहले हम मिक्स फॉर्म से फ्रैक्शन फॉर्म में जाएंगे. कैसे करेंगे, वेरी इजी. अब हम इसको क्या करेंगे, जब हमारे पास ये मिक्स फॉर्म गिवन होती है हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा. यानी कि रफ वर्क में यह हम काम कर सकते हैं. यहाँ पे आप रफ वर्क बनाएंगे. हम कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर इज 30. अब आप क्या करेंगे, जो आंसर आया है इसको, यानी कि 5 6 30, 30 में ये जो ऊपर नंबर नजर आ रहा है 3, इसमें हम प्लस कर देंगे. 30 + 3 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, 33. यस स्टूडेंट, 33/5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्लास, अभी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई. अभी हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं, फ्रैक्शन परसेंटेज का साइन हमने अभी यहाँ से नहीं रिमूव किया. अब दिस इज द टाइम टू रिमूव द परसेंटेज सिंबल. व्हेन वी रिमूव द परसेंटेज सिंबल दैट्स मीन वी आर डिवाइडिंग द गिवन टर्म विद द 100. अब हम यहाँ पे परसेंटेज के सिंबल की जगह पर इसका मतलब यही होता है डिवाइडेड बाय 100. ओके क्लास, यू कैन सी दैट ये दोनों नंबर डिजिट्स ये दो हैं किसी भी टेबल से कट नहीं हो सकते. बिकॉज नहीं, ये 11 के टेबल में आता है. 11 के टेबल में 100 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 11. 5 33 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ टेबल 5. ये जो है टेबल के किसी एक टेबल से ये तीनों नंबर सॉल्व नहीं हो सकते. दैट्स वाई हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि we will write it as it is but multiply the 5 with 100 and that is the answer of part D. तो क्लास ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया. नाउ
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसका वाइस वर्सा करना है। वाइस वर्सा का मतलब होता है स्टूडेंट, आपको इसका बल्कि नहीं, वो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव गिवन एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज आ डेसिमल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है डेसिमल से परसेंटेज से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट, यानी कि परसेंटेज से आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म मतलब क्लास पॉइंट में आंसर देना होगा। ओके, कैसे करेंगे अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन गिवन है 4%। ओके, क्वेश्चन यू हैव गिवन 4%। सो हाउ टू सॉल्व, you will write 4 percentage means divided by 100. This is 100. Okay, first of all we will cancel it or simplify it. पहले हम इसको simplify करते हैं। अगर हो जाता है तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 as it is means 2/50। अभी ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, क्यों? क्योंकि 2 इवन नंबर है और लास्ट का 0 भी इवन नंबर है, तो ये कैंसिल होगा। कैसे, ये देखिए, 2 1 जा 2। अब आपको पता है स्टूडेंट 5 जो है 2 के टेबल में नहीं आता, 5 से छोटा 2 के टेबल में आता है 4, जो कि होता है 2 2 जा 4। 5 - 4 मीन्स 1, ये हमने यहाँ कैरी दे दी, ये बन गया 10। 2 5 जा 10। स्टूडेंट अब आप देखें 1/25, 1 से 25, तो ये तो डिवीजन वाला प्रोसेस है। अब हम इसको डेसिमल में करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, 25 वी विल राइट इन डिवाइजर पोजीशन, 1 वी विल राइट इन डिविडेंड पोजीशन। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, क्लास 1 तो बहुत छोटा है, 25 बड़ा है, यहाँ पे अब कोई ऊपर नंबर नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 पॉइंट करके लिखा और एक 0 यहाँ पर ले लिया। अब आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी भी ये छोटा है, तो हम इस पॉइंट से क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इस पॉइंट से फर्दर क्या ले लेंगे, यहाँ पर हम एक और 0 लेंगे। तो हमारे पास जब हम एट अ टाइम 2 0 लेंगे तो एक 0 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो अब हम जानते हैं 25 4 जा 100 होता है, ये हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ गिवन पार्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास गिवन फॉर्म है विच इज 0.04। ठीक है, ये हमने इस तरह से किया। दोबारा सुन लीजिए, मैं ये रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखें 1 जो है बहुत छोटा नंबर था, तो 1 जो है 25 से सॉल्व नहीं हो सकता था। जैसे हम कैरी लेते हैं, इसी तरह हमने यहाँ पे अब ऊपर आंसर में क्वेश्चन के पोजीशन पे तो कोई नंबर भी नहीं लिखा हुआ था, तो हम क्या करते हैं, व्हेनेवर वी डोंट हैव नंबर बिफोर द पॉइंट, सो वी विल राइट 0 हेयर। हम पॉइंट के, जब हमारे पास पॉइंट कोई नंबर नहीं है, पॉइंट से पहले तो हम 0 लिखेंगे और पॉइंट लिखेंगे और एक 0 हमने ले लिया। अभी भी क्लास 10 छोटा है, तो हमने पॉइंट के बाद एक और 0 यहाँ लगाया और एक और, मतलब एट अ टाइम जब हम पॉइंट से 2 0 लेते हैं तो यहाँ पर ऊपर भी एक 0 यहाँ पे ऐड हो जाएगा और 25 4 100। ठीक है, अब हम 633 वाला सॉल्व करते हैं। पार्ट बी वी हैव गिवन 633 परसेंटेज, 633%। अब आपको पता है 3 जो है एक ऑड नंबर है और 0 जो है वो इवन नंबर है, तो ऑड और इवन 2 4 के टेबल में तो आते ही नहीं है। 2 4 6 जितने इवन नंबर वाले टेबल होते हैं उनमें, उनसे तो ये कैंसिल आउट होंगे नहीं। 3 और डिवाइडेड बाय 100, क्लास इन दोनों का आपस में कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। ये रफ वर्क में आपने बनाना है, ये जो सारा काम है 100 और यहाँ पे हम लिखेंगे 633। ओके, अब क्लास ये 633 है, तो 100 के टेबल में 633 तो नहीं आता। लेस देन 633 वी हैव 600 6 600। ओके, एंड देन अब हमने इसको माइनस करवाना है, तो माइनस करवाने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 33। अब क्लास पॉइंट लगा के हम क्या ले लेंगे, 0। 100 3 जा 300। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 30।
अब पॉइंट में से क्लास एक जीरो हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि 100 से 30 के तो 100 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 300 तो आता है, तो पॉइंट्स हम जीरो ले लेंगे। इट बिकम 300 और आपका जो आंसर आया वो है 6.33। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर आ गया और ये आपका काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट, ये हमारे पास पार्ट बी था। अब हम करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, 0.02%। क्लास इसका पार्ट डी आपका होमवर्क होगा, ठीक है, वो आप खुद करेंगे। 0.02%। अब हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, यस 0.02 डिवाइडेड बाय 100 है। पहले क्या करेंगे क्लास, ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो जाएगी, ठीक है। हमें ये तो ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में है, डेसिमल का डेसिमल कैसे लेंगे। पहले हम क्या करेंगे क्लास, ये जो डेसिमल फॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना, हम इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल के डेसिमल लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपके आसानी के लिए ये करूँगी, पहले मैं ये जो परसेंटेज वाला है ना, अभी हम परसेंटेज से पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था, पहले हम पॉइंट रिमूव करवाएंगे। यहाँ से पॉइंट रिमूव किया तो ये कितना बन गया 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 0। ओके, अभी हमने परसेंटेज वाला सिंबल रिमूव यहाँ से नहीं करवाया है क्लास, मतलब ये हमने इसको परसेंटेज से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है। अभी हम सिर्फ पॉइंट हटा के डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शन में लेकर आ रहे हैं। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है क्लास वो इस तरह से है कि पॉइंट से पहले, अब पॉइंट तो ख़त्म हो गया, पॉइंट जीरो नंबर से पहले जीरो की वैल्यू नहीं होती, यानी कि ये 2/100 है। अब क्लास हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो उसका मतलब भी होता है कि वो नंबर जो है डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इस तरह से। अब देखें क्लास ये कैसे सॉल्व होगा। अब ये कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 0 का 0, यानी कि 1/50 मल्टीप्लाई बाय 100। इसके साथ हम क्या लिखेंगे, 150 ज़ा 5000। ओके, 5 1 ज़ा 5 और 3 zeros, इट बिकम 5000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्लास, 1 को 500 से डिवाइड करेंगे। 1 को 500 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5000 यू विल राइट आउटसाइड, 1 2 3 और यहाँ पे हमने 1 से, अच्छा जी, अब पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है, 0 लिखा, पॉइंट लिखा, 1 0। अब क्लास अभी भी बहुत छोटा है, फिर हमने यहाँ पे एक और 0 लिया, तो यहाँ पे अभी भी बहुत छोटा है। अब हम दोबारा क्या करेंगे, एक और 0 लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, हाँ जी, अभी भी ये बहुत छोटा है, ठीक है, अभी भी 1000 है, 5000 चाहिए। अब एक और 0 लेंगे, जितने 0 हम बढ़ाते जाएंगे उतने 0 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब 5000 2 ज़ा होता है 10,000, अब ये बन गया है 10,000, तो हमने यहाँ पे 10,000 करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया और हमारे पास इस क्वेश्चन की डेसिमल फॉर्म जो आई है, यानी कि इसको कहते हैं डेसिमल फॉर्म की डेसिमल फॉर्म। परसेंटेज में पहले आप, परसेंटेज से पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या सिंप्लीफाई करेंगे, परसेंटेज का सिंबल हटा के दोबारा डिवाइडेड बाय 100 सिंप्लीफाई किया। अब हमारे पास जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू 0.002। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट। अच्छा जी, अब पार्ट डी जो है आपने क्या करना है, बिल्कुल आपके पास मिक्स फॉर्म है तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह उसको करके देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी इज योर होमवर्क, और ये आपको कॉपी में ही सारा काम करना है, फेयर कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट डी होमवर्क है, ये काम आपका मैथ्स की फेयर कॉपी में होगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन। अब हमने 3 में आप देखें, आपके पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वाइस वर्सा है क्वेश्चन नंबर किसका,
क्वेश्चन नंबर 3 वाइस वर्सा है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या किया था स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको परसेंटेज गिवन थी, आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब 3 में आपको फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है। क्या करना है स्टूडेंट? आपने इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज फॉर्म में, ठीक है? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ओके, एंड हाउ टू कन्वर्ट? ओके, just a second. Yes student, please just a second, there is an issue. Yes, okay. Part A we have given 3/5. अब हम इसको क्या करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। क्लास, अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? परसेंट के मतलब होता है 100, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब हमें परसेंटेज में गिवन नहीं होगा तो हम इस चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 100 क्यों नहीं करें? क्योंकि परसेंटेज में हमें वो सवाल लेके आना है। मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल आउट, 5 1 5, 5 2 10, 0 एज इट इज, 3 20 60। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका? 320। जब हमें कोई चीज़ परसेंटेज में मालूम करनी होती है तो हम उसको क्या करते हैं? 3 20 60, और आप यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज। ओके, पार्ट बी। अब आप देखें, वेरी इजी क्वेश्चंस। पार्ट बी, यू कैन सी दैट 9/10, 9/10, 9/10 means we will that question we will multiply with the same number, means 100. अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, like this you can see here. Okay, it become 10 1 10 and 10 10 100. अब देखें हमारे पास क्या है? 9 9 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 9 10 90, और परसेंटेज का साइन आ गया और सिंबल आ गया, हम कहेंगे सिंबल। ओके जी क्लास, तो ये हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट सी हम करते हैं। पार्ट सी, यू हैव गिवन 6/125, 6/125। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्या करेंगे? एज यूजुअल मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 5 के लेवल से कट होगा, 5 2 10, तो यहाँ पे बचा 5 5 25, 5 2 10, 0 का 0। अभी भी ये फर्दर 5 से कैंसिल हो सकता है, यानी कि 5 5 25, 5 4 20। अब हमारे पास क्या आंसर आया? 6 4 24/5। अब देखें ये कैंसिल नहीं हो सकते, परसेंट। ठीक है क्लास, इसको आप यहाँ तक स्टॉप कर देंगे, डेसिमल फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, नो नीड टू कन्वर्ट द फर्दर, सिंप्लीफाई द फर्दर। ओके, पार्ट डी, आई एम गिविंग यू होमवर्क। इसका भी आपको पार्ट डी होमवर्क दिया जा रहा है, एंड ये तमाम काम आपको अपनी मैथ्स की फेयर कॉपी में करना है, नोट डाउन। ठीक है? यस स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात, आप चूँकि सेकेंड टर्म का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ सेकेंड टर्म के सिलेबस आउटलाइन के लिए एक एक पेज छोड़ दीजिएगा। ठीक है? आपने एक एक पेज सिलेबस में के लिए छोड़ना है। फर्स्ट टर्म का काम जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से सेकेंड टर्म स्टार्ट होगा। इसके लिए यू विल लीव 1 पेज फॉर द सिलेबस आउटलाइन, एंड फ्रॉम द सेकेंड पेज you will start from your work. Okay, now part E, you have given 12/25. अब हमारे पास ये कितना गिवन है क्लास? 12/25। ओके, अब हम एज यूजुअल क्या करेंगे? यहाँ पर 12/25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे
100 से, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे क्लास? यस, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0 का, लेट मी राइट दिस क्लियरली, ये हम इसको क्लियरली लिख लेते हैं। ओके ओके, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, अगेन 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, मीन्स 12। अब सामने हमने क्या 12 4 ज़ा 48, 48% इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अब हम पार्ट एफ की तरफ चलेंगे जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। पार्ट एफ वी हैव गिवन 1 6/25, सम एक्स फॉर्म। जी स्टूडेंट, 1 थोड़ा सा हम सेपरेट करके लिखेंगे। ओके, एज यूजुअल ये मिक्स फॉर्म से हम किस में जाएंगे? फ्रैक्शन फॉर्म में जाएंगे। 25 1 ज़ा 25, 25 प्लस 6 कितना बनेगा स्टूडेंट? 25 1 ज़ा 25, 25 प्लस 6 बिकम 31/25। ओके, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। अब इसको कट किया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, मीन्स 31 4 ज़ा, क्या आंसर आएगा हमारे पास? 31 4 ज़ा 1, 4 4 3 ज़ा 12, 124%. This is the answer of question number 3. Okay, question number 4 अब हमारे पास given है स्टूडेंट। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वाइस वर्सा है क्वेश्चन नंबर 2 का। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डेसिमल फॉर्म से किस में जाना है क्लास? डी फॉर डेसिमल, डेसिमल से आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ठीक है, आपको क्वेश्चन गिवन है 0.78। ओके, पार्ट 1 यू हैव गिवन, पार्ट ए यू हैव गिवन 0.78। अब आप इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.78। पहले तो हम इसको क्या करेंगे क्लास? फ्रैक्शन से, डेसिमल से फ्रैक्शन में पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 1 और 2 नंबर हैं तो 2 0, तो यानी कि अब ये बन गया हमारे पास 78/100। अभी मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ अभी डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है इसको। अब हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 1 इधर चला गया, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 0 का 0। क्लास अब आप देखिए 39/50 दोनों एक टेबल में नहीं आते हैं। अब हम मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज के लिए हम इधर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, परसेंटेज के लिए हम ऊपर मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 100 करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए। मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 39 2 ज़ा, अब हमारे पास जो आमने सामने नंबर हैं 39 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 2 9 ज़ा 18, 8 हम यहाँ लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी, 2 3 ज़ा 6, 78%। ओके क्लास, दिस इज द आंसर। और वैसे इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से हम कैसे कर सकते थे?
हम इसको ज़्यादा आसान तरीका पार्ट बी में मैं आपको दिखाती हूँ। पार्ट बी में इससे भी ज़्यादा इजी आंसर है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस स्टूडेंट, पार्ट बी यू कैन सी, पार्ट बी इससे भी ज़्यादा आसान है। उसमें क्या होगा, 0.25 0.25%, सॉरी नॉट परसेंट, इट्स अ डेसिमल फॉर्म, इसको आपने कन्वर्ट ही करना है। ओके, नो, यस 0.25, ठीक है। अब हमने इसको एज यूजुअल फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया। हम इसको 0.25, अब पॉइंट हटेगा तो रिमूव करेंगे हम यहाँ से। आपको पता है पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद 1 आता है, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं वो 0 लिख दिए जाते हैं। और क्लास हमें परसेंटेज में चाहिए, अब मैं ये सेकंड मेथड कर रही हूँ। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब क्लास पॉइंट्स खत्म हो गया तो पॉइंट से पहले, यानी कि 0 से पहले 25 से पहले अगर 0 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, वो नहीं लिखा जाता। मतलब हम इसको सिंप्लीफाई तरीके से इस तरह करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखिए, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 25% इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है क्लास। अब इसका हम एक पार्ट और करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, 0.07 पार्ट सी यू हैव गिवन 0.07 सॉल्यूशन। ओके, अब एज यूजुअल हम इसको पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे, 100, ठीक है क्लास। यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया और साथ के साथ यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 100, इसलिए क्या कि हम किस में जा रहे हैं, परसेंटेज में। ओके, अब ये 100 से 100 क्या हो गया, कट, और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट डी, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट डी हमारे पास गिवन है 0.0095, 0095। अब सोल्यूशन में फिर हम वही करेंगे, 0.0095 क्लास। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 4 0, और हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, यानी कि 95 अपॉन 100। अब क्लास ये कैंसिल भी हो सकते हैं। कैंसिल कैसे करेंगे, देखिए 5 1 जा 5, 4 यहाँ चले गए क्योंकि 9 - 5 4 होता है, तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0 का 0, यानी कि 19/20% इज द आंसर ऑफ अ गिवन क्वेश्चन, 20%। ओके क्लास, चलें अब हम इसका पार्ट ई इज द होमवर्क। पार्ट ई में आपको होमवर्क दे रही हूँ, और पार्ट एफ जो है वो हम करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट ई इज योर होमवर्क, पार्ट एफ में आपने क्या करना है, 2.6, देयर इज नो न्यू थिंग। अब आप क्या करेंगे क्लास, 2.6 पॉइंट हटेगा,
पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद क्या आया 1 और ये 0। इट्स अ रिमूवल ऑफ पॉइंट। ये 1 नहीं है क्लास, ये 8। यस, इसको मैं क्लियरली लिख लेती हूँ 2 6। अब ये हमने पॉइंट यहाँ से रिमूव किया, यानी कि ये बन गया 26 अपॉन 10। और अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100 से, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। 10 1 10, 10 10 100। 26 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, इट बिकम 260%। So class, further question from question number 5 we will solve in next class इंशाल्लाह। आज जो हमने किया है वो हमने 4 क्वेश्चंस किए और इसमें हमने क्या क्या सॉल्व किया। इसमें हमने किया एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 1 में परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन फॉर्म में जाना था, मतलब डिवाइडेड बाय 100 करके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में आपको परसेंटेज से डेसिमल में जाना था। क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना था, परसेंटेज में जाने के लिए मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डेसिमल से परसेंटेज में जाना था। ओके क्लास, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।